جو سیکولر ایڈوکیٹ فورم کے تحت جو کام کر رہے ہیں جناب میر ضیاء اللہ صاحب، جناب سید اشتیاق احمد جو ہمارے صدر ہیں، جناب مظفر احمد صاحب، جناب نیاز احمد صاحب، جناب شاہول احمد ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، جناب اکمل صاحب، اور بھی جو ہے تقریباً 30 سے 40 وکلا ہیں جو اس میں جو ہے کام کر رہے ہیں. National News with Rizwan Asad. I have with me Syed Ishrat Ahmad. He is the Vice Chairman of Secular Advocate Forum of Karnataka, Bangalore. You maybe recall that 7 months back, violence had taken place in Bangalore, in KGL and DGL, and more than 500 youths were arrested. And this forum, Secular Advocates Forum, has been fighting relentlessly to get bail for the accused and the victims. Today, I have come here to speak to him. Some victims have been given bail and this issue have come. Sir, how many victims did you release and how is your forum working? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا میسج جو ہے because I don't want to give the interview in English, because I want to give my interview in Urdu so that my message should go to the persons who are affected in this. تو میرا کہنے کا مطلب کیا ہے، جو کے جی ایل اور ڈی جے ڈی کے جو فسادات ہوئے تو فرام دی بگننگ، شروعات سے لے کر جو ہے ہم لوگ جو ہے ان مظلوموں کے ساتھ جو ہے ہمارا رابطہ رہا. ہم نے شروع سے جس دن فسادات ہوا 11 اگست ہوا تو اس کے بعد سے جو ہے ہم لوگ مکمل ان لوگوں کے رابطے میں رہے. ہم نے افیکٹڈ ایریاز کو بھی وزٹ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے ٹانی روڈ میں ہم نے ایک آفس بنائی جہاں کے پر جو ہے جو بھی معصوم افراد جو گرفتار ہوئے تھے ان کے ڈیٹیلز ہم لوگوں نے وہاں پہ کلیکٹ کیا. پھر ہم لوگوں نے ہمیشہ کمپلیکس کے اندر ہم نے ہماری ایک آفس کھولی، وہاں پر بھی ہم نے جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کیا. اس کے بعد جو ہے ہم نے سینئر ایڈوکیٹس کی رہنمائی حاصل کی اور ان لوگوں کی مدد سے جو ہے ہم نے ہائی کورٹ کے اندر پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن فائل کیے، ریٹ پیٹیشنز فائل کیے. ہم نے یو اے پی اے کو چیلنج کیا. ہم نے جو ایف آئی آرز، نمبر آف ایف آئی آرز جو فائل ہوئے تقریباً 74 یا 75 ایف آئی آرز جو داخل کیے گئے ہیں، اس کی بارے میں بھی جو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. ہم نے ہائی کورٹ سے کہا کہ جو بھی انویسٹیگیشن ہو رہا ہے وہ ہائی کورٹ کی مانیٹرنگ میں یہ انویسٹیگیشن ہو تاکہ شفافیت حاصل رہے. تو کتنے لوگوں کا آپ نے کیس لڑا؟ ہمارا جو ہے جو تھا، جو غریب، جو مستحق اور جو معصوم ان لوگوں کی مدد کرنا یہ ہماری ایجنڈے میں شامل تھا. اور ہمارا مقصد جو تھا، جو احباب، جو مظلوم، جو غریب ہیں، جو وکلا کی خدمت حاصل نہیں کر سکتے، جو وکلا کی فیس نہیں بچ سکتے، تو ان لوگوں کی مدد کے لیے ہم لوگوں نے آگے آیا. ہم نے جو ہے اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے جو ہے ہماری سرپرستی جو ہے حضرت امیر شریعت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی صاحب، ان کی سرپرستی ہم لوگوں کو حاصل رہی. اور ان کی لیڈرشپ میں جو ہے ہم نے میٹنگ کی جس کے اندر ایریا کے کارپوریٹرز، ایریا کے ایم ایل ایس اور مسلم ایم ایل ایس، مسلم ایم ایل سیز، جس میں جناب نصیر احمد اور جناب ضمیر احمد صاحب، جناب کے جے جاگ صاحب، یہ لوگ پیش رہے. ان لوگوں کے رہنمائی میں ہم لوگوں نے اس کام کی شروعات کی. اور جو بھی وکٹمس ہوئے ان کو مالی طور کے اوپر بھی جو ہے جو بھی مدد تھی وہ صغیر صاحب میرے شہر کی رہنمائی میں ان لوگوں کو، آپ کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو شہید ہوئے بچے ان لوگوں کو 5 لاکھ روپے ظہیر احمد صاحب نے دیے. اور باقی جو زخمی ہوئے تھے ان لوگوں کی مدد کی. اور جو راشن تھا اس لوگوں کی وہ مدد کے لیے سب کا سب رہنے گئے. 7 مہینے کیوں دینی ہوئی ان کو بیل ملنے؟ یہ بیل ملنے کے لیے جو ہے اس میں مشکلات جو ہے ایف آئی آر پڑے. میں آپ کو بتاؤں، جو بھی مقدمہ داخل ہوئے تھے اس کے اندر جو سیکشنز لگائے گئے تھے یہ اتنے کٹھن تھے کہ اس میں جو ہے بیل ملنا ہمیں مشکل نظر آئی. اسی لیے کرائم اسٹیج کے اندر جتنے بھی بیل اپلیکیشن ہم نے ڈالے وہ تمام اپلیکیشن جو ہے ہمارے ریجیکٹ ہوئے. حالانکہ ہم نے
अच्छे सीनियर एडवोकेट्स की रहनुमाई हासिल की, उन लोगों को जाके हमने आर्गुमेंट हाई कोर्ट में भी करवाया और ट्रायल कोर्ट में भी कराया, मगर हम लोगों को उसमें कामयाबी नहीं हो सकी। उसके बाद जो है जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हुए, उसके बाद जो है चार्जशीटों का दाखिलों का सिलसिला शुरू हुआ। अब जैसे ही चार्जशीटों का दाखिला सिलसिला शुरू हुआ, इसमें बहुत सा वकला जो है जो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, उन वकला ने आके वहां पे हम बेल एप्लीकेशन डालना शुरू कर दिया। इसमें जो है गड़बड़ हो गई। तो हम लोग आप ये आपका एसोसिएशन जो केस लड़ रहा था, दूसरे वकील भी डालकर वो उसी केस में एप्लीकेशन डाला, हाँ। तो इसमें दिक्कत हुई। दिक्कत है। अब जब है, अब मैं एक बेल एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, ऑलरेडी समबडी हैज फाइल्ड द बेल एप्लीकेशन। ये क्यों वो मेरे आप पहले मेल डाल दिया था, मैं बात डाला। आप जब आपका फ्रेंड सेक्युलर एडवोकेट फ्रेंड कर रहा है, तो दूसरा वकील कैसा डाल सकता है एक बार, और दूसरी बात जब आप लड़ रहे हैं बिना कोई फीस से लिए, तो दूसरा वकील कैसा आ सकता है। और इससे विक्टिम और जो अंदर जो अरेस्ट हुआ है उसको दिक्कत हो रही है, और मुसलसल 7 महीने हुए हैं, एक विक्टिम के ऊपर 7 केस, 8 केस, 10 केस, 20 केस पड़े हैं। तो इसको कैसा टैकल किए आप, और बेल मिलने में कितनी देर? देखिए मैं आपको बताऊं, जो साहिब हैसियत आदमी है, वो लोगों ने अपने एडवोकेट्स को हायर करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपना वकील को रखा और उन्होंने बेल लेनी शुरू कर दी और उन्होंने छुट्टी देनी शुरू कर दी। इस तरह से तकरीबन समझो 40-50 ऐसे अक्यूज थे जो साहिब हैसियत थे हमारी निगाह में। हमारी निगाह में मतलब विकास है, जबकि हम अलग ऐलान कर रहे हैं कि भाई हम लोग फ्री सर्विस कर रहे हैं, आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी अगर कोई दूसरा वकील करता है जो पैसा लेके काम कर रहा है, तो उसमें हमारी मदखलत जो फ्री कर रहे हैं आपको वैल्यू नहीं दिए वो नहीं। उसकी वैल्यू का मतलब, वैल्यू देने वाले तो तीसो मंतशा होता जिल्लु मंतशा, उनकी वैल्यू देने से ना देने से हमको कुछ फर्क पड़ने का नहीं है। हम तो सिर्फ अल्लाह की राजी करने, अल्लाह की रजा के लिए हम लोग काम करें, हम ना पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो आप एक पैसा भी नहीं, नहीं, ये पैसा हम किसी से भी नहीं लिए। मगर इतनी देर क्यों हुई, 7 महीने क्यों? अरे 7 महीने क्यों हुए बोले क्यों? एक आदमी के ऊपर जो है तकरीबन 8-10 केसेस है, चंद इसमें तकरीबन 100 या 150 अफराद ऐसे हैं जिनके ऊपर 2-2 केस या 3-3 केस, या कुछ मामलों में सिर्फ एक ही केस है। ऐसे भी अफराद तो जिनके ऊपर एक केस या 2-2 केस था, ये लोग छूटते गए। दूसरे लॉयरों का कहना है कि हमने छुड़ा लिया बहुत से लोग। सबसे पहले एक जो विक्टिम बाहर है, हमने नशे में इंटरव्यू किया, तो वो वकील का दावा है कि सबसे पहले उन्होंने छुड़ाया और ये हुआ। और सेक्युलर फ्रंट के लॉयर्स फ्री कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, उनका दावा है। तो मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ। जो वकील साहब की आप इशारा कर रहे हैं, उनका बयान मैंने भी पढ़ा है, उनका इंटरव्यू मैंने भी देखा है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने छुड़ाया, उन्होंने ये कहा है कि भाई उनके अक्यूज के सरपरस्तों की मदद से हमने उन लोगों को छुड़ाया। उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि पूरे 200 अफराद को या 250 अफराद को मैंने छुड़ाया है या मैंने उनकी जमानत का बंदोबस्त किया, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि भाई उनके जो अक्यूज यानी जो भी मुजरिमान जिनकी बेल हो चुकी है, जिनकी जमानत दे चुकी है, वो जमानत का इंतजाम जो है उनके घर वालों ने किया है या उनके कुछ वेल विशन फिलैंथ्रोपिस्ट ने किया है, तो उनकी मदद से निकाला, ऐसा कहा है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने सबको निकाला है। नहीं, अल्टीमेटली लॉयर आर्ग्यूमेंट करता है, उसको फाइनेंशियल फंड भी आएगा या उसको कोई मदद भी किए होंगे, ये है। मगर ये मेरा सवाल ये है कि आप इतना बड़ा फोरम है, इतने दिक्कत क्यों, ये दिक्कत क्यों है आपको 7 महीने निकालना है? चार्जशीट देखिए, चार्जशीट जो है एक चार्जशीट है। अब ये केस के अंदर हमने बेल एप्लीकेशन लिया, उसके अंदर हम श्योरिटी दे रहे, तो उसको जो दूसरे केस में बॉडी वारंट डाल देते हैं। उस केस में हम छुड़ाने जाते तो तीसरे केस में बॉडी वारंट डाल देते। तो आप बताइए, जहां 70-50 एफआईआर हो कहीं, अब एक आदमी के ऊपर जब बिजनेस केस हो कहीं, तो वो कैसे छूट जाएगा? और श्योरिटी का बंदोबस्त करना है। अब श्योरिटी जो है इतनी मुश्किल है, आपको तो मालूम है
कोर्ट के अंदर जमानत जो है, जब जज के पास हमने जब जमानत का पेपर जब देते हैं तो वो पूरे देखता है कि भाई जो जमानत दे रहा है क्या ये हैबिचुअल ये श्योरिटी देने वाला है क्या, इसने किस लोगों को किसने पहले कितने श्योरिटी दी है, ऐसे बहुत से मामला थे। तो फिर कैसे छोड़ा है भाई इन लोगों को? देखिए हम लोगों ने छुड़ाया ये नहीं कह रहा हूं, अब तक जितने भी छूटे तकरीबन 200 अफराद जो छूटे हैं उन लोगों ने उनके घर वालों ने श्योरिटी पेश करके छुड़ाई है। अब जो बचे हुए तकरीबन 250 अफराद अभी भी जेल में हैं, ये अफराद ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीबों से भी गरीब, पूरे शब्दी पूर, अगर मैं कहूं तो पूरे शब्दी पूर कहूंगा, और इन लोगों के ऊपर जो है मिनिमम 10-10 से 20-20 और कुछ अफराद के खिलाफ 30 केस तक भी है। तो ऐसे अफराद को जो है इनको छुड़ाने का बेड़ा हमने उठाया है। अभी ये हमारा छुड़ाने का सिलसिला जो है पिछले एक हफ्ते से शुरू हुआ है। अब एक हफ्ते से जो है हम लोगों ने जिन केसेस के अंदर बेल नहीं हुई है उन केसेस के अंदर हमने बेल डालना शुरू किया है। अब फॉर एग्जांपल SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट बोले तो ये फेमस संपत का केस बोलते हैं या जाकिर का केस, ये केस में मामला है। तो इस केस के अंदर जो है सेशंस कोर्ट के अंदर किसी की बेल होके नहीं है। ये जो अखंड श्रीनिवास मूर्ति का जो घर जलाया है वो FIR नंबर 229 आई थिंक, नो उसका क्राइम नंबर है। वो जो है जो अखंड श्रीनिवास मूर्ति का घर जो जलाया गया है उसमें जो है बर्निंग, लूटिंग, 307 RSN प्लस SC/ST एक्ट, ये सेक्शन के तहत जो है इसमें तकरीबन 60 से 70 अफराद का नाम है। उसके अंदर संपत राज भी है, यार जाकिर भी है, और एक जो है अखंड श्रीनिवास मूर्ति के बहन का घर जो जलाया है वो क्राइम नंबर है, उसमें भी SC/ST एक्ट है, उसमें भी एक्सप्लोजिव एक्ट है, ऐसा है। तो इन दो केसों के अंदर जो है तकरीबन 100 से ज्यादा मुलजिमान हैं जिनकी जमानत नहीं हो चुकी है। उनको हाईकोर्ट से हुई, उन लोगों को जो है हाईकोर्ट से बेल हुई है और उसे भी जो है चैलेंज किया गया है। अब बाकी अफराद जो है तकरीबन 100 अफराद है उनकी बेल होके नहीं है, तो उन लोगों की बेल एप्लीकेशन हम लोग तैयार करके अभी हम डाल रहे हैं। और इसी तरह जो UAPA के जो केसेस थे, UAPA केसेस के अंदर तकरीबन 300 आदमी के ऊपर UAPA केसेस थे। तो उन लोगों की आप जैसा जमानत आप बार बार पूछ रहे हैं कि 7 महीने क्यों है, 7 महीने क्यों है, UAPA केसेस के अंदर जो है 6 महीने के बाद चार्जशीट है, 6 महीने के बाद चार्जशीट है। चार्जशीट आने के बाद हमको हाथ को चार्जशीट मिलने के लिए 10-15 दिन लगे, क्योंकि जज जो है चार्जशीट को स्क्रूटनाइज करने के बाद हुआ। तो उस चार्जशीट के अंदर जो है 2 केसेस थे UAPA के, ये KG पुलिस स्टेशन का एक था, ये DG पुलिस है। KG पुलिस स्टेशन के अंदर तकरीबन 25 या 30 अफराद के खिलाफ जो है उन्होंने UAPA का चार्ज लगाया है। बाकी लोगों के ऊपर IPC के दूसरे सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सिमिलरली DG केसेस के अंदर जो है उसमें भी तकरीबन 25 या 23 अफराद के खिलाफ जो है UAPA का चार्ज लगाया है, बाकी के चार्जेस उन्होंने हटा दिया है। तो ये जो है इसमें जो है 6-6.5 महीने जो है इसमें लगे। तो आज कितने लोग को आप छुड़ा रहे हैं? अमीर शरीयत की क़यादत में आप बोल रहे हैं कि निकाल। हाँ देखिए, आप जो है तकरीबन 28 अफराद जो है बल्लारी जेल में थी। 28 अफराद में से 18 अफराद की बेल रिलीज ऑर्डर जो है हमने बेल्लारी जेल को भेजा है। तो 18 आदमी जो है आज इंशाल्लाह रिलीज हो जाएंगे। बाकी जो 9 आदमी है, 9 या 10 आदमी कुछ है, उनकी भी बेल मंजूर हो चुकी है, श्योरिटी मंजूर हो चुकी है। कुछ टेक्निकल वजूहत की बिना के ऊपर कल रिलीज ऑर्डर नहीं निकला, आज क्योंकि हॉलीडे है, इसलिए कल जो है इंशाल्लाह जुमा के दिन जो है वो 9 अफराद का भी रिलीज ऑर्डर निकल जाएगा। तो जो बल्लारी जेल के अंदर जितने भी बाकी अफराद हैं वो पूरे इंशाल्लाह पीर तक पूरे निकल जाएंगे। एक इन लोगों की जमानत का इंतजाम जो है। एक आम सवाल, आप लोग सेक्युलर एडवोकेट फर्म लड़ रहे हैं, आपको कोई डोनेशन आके दिया? आप फ्री काम कर रहे हैं, कोई इतने बड़े बड़े मालदार लोग हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सोशल सामाजिक कारकुन हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, आपको कोई फंड दिया या उनको बचाओ या उनकी शुरू? हम लोगों को उन्होंने फंड ऑफर किया और हम लोगों ने फंड लेने को मुस्तरद कर दिया। हम लोग जो है जो भी सर्विसेस है हम लोग फ्री कर रहे हैं। हम लोग जो है पेपर
खलन या स्टाम्प के लिए भी हमने पैसा नहीं लिया है। हम लोग जो भी छुट्टी देने का है, अमीर शरीयत साहब की क़ियादत में पैसा आ रहा है। उन अमीर शरीयत ने एक आदमी को मुकर्रर किया है, पैसा जो है उस आदमी के पास है। वो आदमी जो है, जो जमानत हो रही है, उन लोगों को जो पैसा पेमेंट, जो भी पेमेंट है, वो पेमेंट वो दे रहा है, वो हिसाब रख रहा है। उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमारा काम क्या है कि भाई इन लोगों की जमानत हो चुकी है, इन लोगों की जमानत मंजूर हो चुकी है, इनको श्योरिटी देना चाहिए। तो श्योरिटी देने का इंतजाम जो है, जो भी एफिडेविट बनाना है, जो श्योरिटीज के लिए जो अफराद को मुंतखब करना है, ये काम हमारा है। हम मुंतखब करते हैं और उनको जो भी पैसे देने का है, श्योरिटी देने वाले लोगों को, उसका बातचीत हम लोग करते हैं और जो भी अमाउंट होते हैं वो लोग पेमेंट देते हैं। और अभी कितने अफराद जेल में हैं अभी तकरीबन 250 के करीब जेल में, तकरीबन 200 अफराद जो है पूरे आपके क्लाइंट्स हैं। देखिए सर, मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग ने ये महीना हमने खामोश रहे। क्यों? कि भाई जो साहिब हैसियत आदमी है, जो अपना वकील कर सकते हैं, जो अपनी जमानत दे सकते हैं, वो दे दे, तो वो खत्म हो गए। अब जो भी बचे हुए हैं वो लोग हमको अप्रोच कर रहे हैं, सर एक बच्चा, मैं आपको बताऊं, मेरे फोन में आपके मैसेजेस नहीं चला सकता, मैं छुट्टी दे नहीं सकता, मैं मेहरबानी करके, हमने सुना है आप लोग छुट्टी का बंदोबस्त कीजिए। ऐसे जो है, ऐसे अफराद की जमानत हम लोग कर रहे हैं। तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद बचे हैं जिनके ऊपर 10-10, 20-20 केसेस है। और ये जमानत का सिलसिला जो है 1-2 दिन में होने वाला नहीं है। 70-50 FIR है। अगर एक दिन में हम 4 केसों में भी जमानत दे रहे तो 74 डिवाइडेड बाई 4, तो कितने वर्किंग डेज के अंदर है। हम लोगों का टारगेट ये है कि रमजान से पहले जो अफराद जेल में ही वो लोग रिहा हो जाए, हमारी कोशिश है। तो टोटल कितने अरेस्ट हुए थे? 500 के करीब, 476 आदमी के करीब अरेस्ट हुए थे। तकरीबन 200 या 210 अफराद जो है रिलीज हो चुके हैं, बाकी स्टिल दे आर इन जेल। तो अभी आज बेल्लारी जेल से 18 लोग आने वाले, 18 आज आने वाले हैं। पीर को इंशाल्लाह और एक 9 आदमी आ जाएंगे। और बाकी के जो हैं बेंगलुरु जेल के जो हैं, जिनके ऊपर 8-10 मुकदमे हैं, उनमें एक केस में जो है हम लोग एक क्राइम नंबर के अंदर जितने भी लोग बाकी हैं उन लोगों की जमानत हम दे रहे हैं। इस तरह से यह सिलसिला जारी रहेगा। उसमें डेली जो है 1-2 ऐसा जिनके ऊपर केसेस है वो छूटते जाएंगे। इससे सबका कहना है कि जितने भी अफराद उनकी फोरम, सेक्युलर एडवोकेट फोरम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके पास एक पैसा नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि वकालत, स्टैंप और वो जो छोटे मोटे कोर्ट के खर्चे हैं ये ले रहे हैं। इनको बहुत लोग पैसे देने का ऑफर दिए, इन्होंने ठुकरा दिया है। और जो भी ये काम कर रहे हैं, जो भी बेल के पैसे हैं और जो भी श्योरिटी है, वो अमीर इन्होंने लेने से मना कर दिया है। आज के दौर में ये काम करना उतना आसान नहीं है और कोई फ्री काम नहीं करता। उनका टाइम, उनका वक्त और उनकी जो भी मसरूफियात है वो छोड़कर इन्होंने एक कौम की मिल्लत का मदद करने के लिए गरीब बच्चों जो फंस गए हैं उनको निकालने की जो बेड़ा उठाए, अल्लाह ताला उनको अजर देगा। और जो भी ये काम कर रहे हैं हज़रत अमीर शरीयत की क़यादत में कर रहे हैं। मैं रिजवान